سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے پڑھیے کھولے آنکھ سلے مجھے مجھے ہاتھی آئے اگر تاج شاہی اگر تاج شاہی تیری کفش پاپڑے تیری کفش پاپڑے نثارا کروں میں نثارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے پڑھیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے اور حضرات رحمتی سے تو اپنا کر لے تو اپنا کر لے سوا تیرے سب سے کہتے کھولے آنکھ سلے کھولے آنکھ سلے تو سبحان اللہ حق ہے خدا کے دم ہے لبوں پر کے دم ہے لبوں پر خدا پڑھیے میں سو جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ کھولے آنکھ سلے کھولے آنکھ سلے وہ قربان جاؤں میرے آقا پر کہ ہمارا سب کچھ حضور پر قربان ہو جائے یہ ایک ہی جانی کیا ہے اگر ہو کروڑوں اگر ہو کروڑوں یہ ایک ہی جانی کیا ہے اگر ہو کروڑوں اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب تیرے نام
کھلے آنکھ سلے سبحان اللہ۔ اور حضرات بطور خاص یہ شعر سماعت فرمائیں، توجہ چاہوں گا علماء کرام کی، ارشاد بتاؤ۔ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، فرشتے جو پوچھے، تمہاری ہی جانب، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، اشارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے، پڑھیے، کھولے آنکھ سلے، اور میں کیوں غیر کی ٹھاکریں کھانے جاؤں، کیوں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھاکریں کھانے جاؤں، کیوں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھاکریں کھانے جاؤں، کیوں کھانے جاؤں، تو تیرے کھانے جاؤں، کیوں کھانے جاؤں، تمہارے ہی در سے، تمہارے ہی در سے گزارا کروں میں، گزارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے، بولے کھولے آنکھ سلے۔ اور حضرات مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ مقطع میں کیا فرما رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ وہ دن بھی نوری، وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے، وہ دن بھی نوری، وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، بہارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے، اللہ کہتے کہتے۔ السلام علیکم۔ کہ یہی کہتا ہے میرا دل میرا من یا رسول اللہ۔ ذرا ایک مرتبہ پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو ہواؤں میں لہرا کر بولیے یا اللہ۔ یہی کہتا ہے میرا دل میرا من یا رسول اللہ، کہ میں بھی دیکھ لوں طیبہ کا گلشن یا رسول اللہ۔ اور وہی ایک کسی نے بھی آپ کی ناز محبت سے باز آئے ہوئے مہمان شاعر کی طرف رجوع کرے، جو آج اپنے مذہب و مسلک کے صحیح ترجمان ہے، جن کی شہرت کا ڈنکا آج پورے ہندوستان میں بج رہا ہے، جس سے میری مراد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نازک خیال حضرت قاری شاہد رضا صاحب قبلہ سے ہے، میں ان کو اس شعر کے ساتھ، اس قطع کے ساتھ اور نعرہ تکبیر کے ساتھ آواز دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے حضرت کے حوصلہ افزائی کے لیے نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کی صدا بلند کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
حضرت علماء اہل سنت شاعر اسلام جلسے کا پروگرام سنی عوام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کہ کون سا مصرع کہوں قاری شاہی تیری شان میں کہ کون سا مصرع کہوں قاری شاہی تیری شان میں دھوم مچ رہی ہے تیری آج پورے ہندوستان میں بس اسی کے ساتھ حضرت علامہ قاری شاہد رضا صاحب کی بلا مائک پر آرام سر اپنی جگہ پر ہماری اور آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ غوث الورا کانفرنس میں تشریف فرما ہے علماء کرام صوفیاء اعظام شعراء اعظام سے ہم آپ سب مستفیض ہو رہے ہیں اور ایک اللہ کے ولی کے قریب میں ان کا بارہ بٹ رہا ہے اپنے وسعت کے مطابق سب لیا کرتا ہے میں خادم ہوں دعا فرمائیے میں اس لائق نہیں ہوں مگر ہاں اتنا ضرور ہے خود کر لے وہ اپنا کر لے تو وہ یہاں بھی کامیاب رہتا ہے اور وہاں بھی کامیاب ایک ایسے ولی اور ایسے بزرگوں سے وابستہ ہوں اور ان کی جوتی اٹھایا کرتا ہوں جس سے آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر شیر بہار مفتی اعظم بہار شیخ طریقت خلیفہ مفتی اعظم مفتی محمد اسلم صاحب رضوی کے نام سے سبحان اللہ حق ہے جس جگہ پر اگر قدم ڈال دے منظر زمین پہ قدم ڈال دے تو وہ شاداب ہوگا سبحان اللہ اسی کا ایک خادم ہوں میں کوئی شاعر نہیں اور یہ ہمارے عزیز محترم حضرت حافظ و قاری اشتیاق احمد صاحب خلیفہ شیر بہار ناظم اعلیٰ فیضان بسم اللہ نے کہا کہ تم بھی کچھ پڑھ دو مگر یہ غریب نواز کے بڑے شہدائی ہیں بزرگوں کے بڑے شہدائی ہیں غریب نواز کی شان میں کچھ کہہ دو اور صحیح معنوں میں یہ غریب نواز کی نگری ہے نظر ڈال دے اگر دل سے پکارو تو یہاں جب پکارو گے تو میرے غریب نواز اسے عطا فرما دے سبحان اللہ بے شک دیا تو نے یا غریب نواز ہمارا بگڑا مقدر بنا دیا تو نے ہمارا بگڑا کہہ دو بس نہ کہہ دو ہمارا میں گیا سبحان اللہ ہمارا میں گیا اور ایک عاشق کیسے کہتے ہیں اور یہی پیغام ہے میرے اعلیٰ حضرت کا کہ زمانہ روٹھ چکا روٹھ جا یہ کیا غم ہے زمانہ روٹھ چکا روٹھ جا یہ کیا غم ہے زمانہ روٹھ چکا بس ایک در ہے تمہارا میں آ گیا بس ایک در ہے تمہارا گیا
जिया मराना में नबी में कटे दिन रतिया काम नबी में कटे दिन रतिया काम नबी में। एक आशिक की तमन्ना है कि तैयबा नगरी आया तैयबा नगरिया हम जो जाते और आका के चौखट पे नात सुनाते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चौखट पे नात सुनाते तो कटती उमरिया हो कटती उमरिया सलाम नबी में सावरी गयो जिया मराना में नबी में कटे दिन रतिया काम नबी में। तैयबा नगरिया तैयबा नगरिया हम जो जाते आका की चौखट पे नात सुनाते आका की चौखट पे नात सुनाते आका की चौखट पे नात सुनाते तो कटती उमरिया हो कटती उमरिया सलाम नबी में सावरी हो जिया मराना नबी में सावरी गयो जिया मराना में। मुर्दा जिलाया और खाजा पिया ने सागर खाजा पिया ने सागर में गाया खाजा पिया ने सागर में गाया खाजा पिया ने सागर में गाया तो क्या सर पे मुझे आपका चेहरा दिखाई दे। हजरात ये देखिए हमारे सरपंच साहब ने मुझे 10 का नोट अता किया। मैं ये समझ रहा हूँ कि 10,000 का नोट है। एक शेर इनके हवाले पेश कर रहा हूँ, समाज कीजिएगा कि जनाब फरीद भाई आपने दिया नोट आपका नाम हो गया, कि जनाब फरीद भाई आपने दिया नोट आपका नाम हो गया और इसलिए मैं खुश हूँ कि मेरा काम हो गया। तो फिर वही मस्तियों नानाई है, ऐसा लगता है कि मैं खिजाओं के सर कटे और नाते नबी पर ही तो गुनाहों के सर कटे। तो हज़रात अब आइए आपकी जायका को बदलने के लिए, आपकी ज़हनो मूड को बदलने के लिए खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना शमीम रजा साहब क़िबला मदफिल्लाह नूरानी से है। मैं उनको इस शेर के साथ, इस कथा के साथ और नारे तकबीर के साथ आवाज देने के लिए जा रहा हूँ। आइए सबसे पहले तकबीर। जैसा नारा वैसी तकरीर, अब आप खुद ही फैसला कर लें कि कैसा नारा लगाएंगे तो हजरत की कैसी तकरीर होगी। तो प्यारे मुसलमानों इसी अंदाज इकरार के साथ नारा लगाओ कि नारे की आवाज गरीब नवाज के मीनार से टकराए और जलजला दारुल उलूम देवबंद में आ जाए। तो नारे तकबीर। देखिए हमेशा दाया बाजू मजबूत उलूम देवबंद में आ जाए। तो नारे तकबीर, रिसालत, मसलक आला अल्लामा मौलाना शमीम रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीबे की शान चले आओ, फाजिले नौजवान चले आओ, लेके खिताबत की शान और शौकत अल्लामा शमीम रजा चले आओ। बस इसी के साथ हजरत अल्लामा मौलाना शमीम रजा साहब क़िबला माइक पर। करामत गव्वासे बहरी मारिफत अशाह इमाम अहमद रजा फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर अपने नबी की बारगाह में यूं नगमा सरा करते हैं। क्या करते हैं कि सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे,
भागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वही इमाम बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर जब अपने गौस की बारगाह में नगमा सरा करते हैं तो कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मनते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मनते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना तेरा। आइए पूरा मजमा निहायत हसन अल हुसैन मुबारक असर मदन दाइबन अब्दन बेदवा मिन मुल्किल्लाह तैयार है मुकम्मल तौर से सुनने के लिए। मोहब्बत के साथ कह दीजिए या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आज़म कॉन्फ्रेंस। हज़रात गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की विलादत बासआदत सन 4 हिजरी 71 हिजरी में, सन 471 हिजरी में विलादत बासआदत, और 561 में आपका इंतकाल पुरमिलाल हो जाता है। जैसे हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबू मूसा जंगी दोस्त के घर तशरीफ लाते हैं, खान में आप फरमाते हैं, जंगी दोस्त तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे घर जो बच्चा पैदा हुआ है वो बच्चा मेरा है और अपने वक्त का कुतुब है, अब्दाल है। कौन फरमाते हैं? आका फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। आका खान में आते हैं जंगी दोस्त के और फरमाते हैं, जंगी दोस्त तुम्हें मालूम है तुम्हारे घर जो बच्चा पैदा हुआ है वो मेरा बच्चा है और आने वाले दिन में वो गौस होगा और उनका कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर होगा। हज़रात आपके वालिद गिरामे का नाम जा रहा है, एक सेब बहता हुआ जा रहा है। अबू साले जंगी दोस्त ने देखा और आपने उस सेब को नहर से उठा करके हाथ में लेकर सूंघा तो उसमें खुशबू आ रही थी। दिल इसके इलाही से चूर हुआ और दिल ने चाहा कि सेब को खा ले। आप खाने पर मजबूर हो गए। सेब को खाने के बाद दिल में ख्याल पैदा हुआ कि आखिरकार ये सेब किसी बाग का होगा। मैंने बगैर मालिक की इजाजत से, बगैर मालिक की इजाजत से मैंने सेब को उठाकर खा लिया है। आखिर ये सेब किसी मालिक के बाग का होगा। चलो ऐसा है, चलो इस मालिक से पूछा जाए, इस सेब के बाग का मालिक कौन है, इस सेब का मालिक कौन है। आप जो है रास्ते से वापस आते हैं, आने के बाद लोगों से पता पूछते हैं। पता पूछने के बाद मालूम करते 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 पता चला, मालूम हुआ कि ये बाग जो है, जो सेब का बाग जो है अब्दुल्ला सोमई का है और वो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। जंगल और बयाबान से बाहर है, अल्लाह की इबादत में मुस्तगरक है। अल्लाह अकबर। वहाँ हजरत अबू साले जंगी दोस्त पहुँचते हैं, अदब के साथ खड़े हो जाते हैं, देखते हैं क्या कि वो इबादत और रियाजत में मशगूल है, इबादत कर रहे हैं। जैसे इबादत से फारिग हुए जंगी दोस्त ने कहा अस्सलाम वालेकुम, जवाब देते हैं वालेकुम सलाम। कहते हैं कैसे आना हुआ? कहा ऐसा है, मैंने आपके बाग से एक सेब खा लिया है, मैं जो है उस सेब की माफी के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। इस सेब खाने की वजह से मैं आपके पास पहुँचा हूँ, आप माफ कर दे, बगैर इजाजत के मैंने सेब खा लिया है। लेकिन आज का इंसान तो कहाँ से आ रहा पता नहीं है, खाया जा रहा है। लेकिन वो और नहीं थे, गौसे पाक के वालिद गिरामी जंगी साली दोस्त अब्दुल्ला सोमई ने देखा
क्योंकि वो भी अल्लाह वाले थे, सुभान अल्लाह, वो भी अल्लाह के प्यारे थे। पहचान लिया कि ये गुलाम, ये बंदा लगता है अल्लाह का प्यारा है, लगता अल्लाह का दीवाना है, लगता अल्लाह का चाहने वाला है, चच्चा आशिक मुस्तफा है। जब भी तो एक सेब की वजह से यहाँ पहुंचा, उनको निगाह में रखना पड़ेगा। बाग से कोई सेब तोड़ कर ना ले जाए, बाग में कोई जानवर ना आने पाए, बाग में कोई आदमी डाकू ना आने पाए, बाग की हिफाजत करनी होगी। आप जो है मंजूर कर लेते हैं शर्तें और कहते हैं इस शर्त मंजूर करने के बाद एक शर्त और है कि हमारी लड़की से तुम्हें शादी करनी होगी। पीछे वाला मजमा कहते हैं सुभान अल्लाह, कहते हैं एक शर्त और है जो बाद में बताऊंगा, पहले तो इसको करो। आप जाते हैं, बात की देखभाली मुतय्यन जो थी मुकम्मल करने के बाद वापस आते हैं, जंगी दोस्त हैं अब्दुल्ला सोमाई के पास पहुंचे। दूसरी शर्त क्या है आका फरमाइए, फरमाते हैं कि जाओ, मेरी लड़की है जो पांव से लंगड़ी है, हाथ से लुंजी है, कान से बहरी है और आंख से जो है अंधी है, तुम्हें उस लड़की से शादी करनी होगी। बताओ तुम शादी करोगे? अब तो मजबूर थे, कहा हाँ मैं शादी करूंगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला स्वामी ने कहा मेरी एक लड़की है जो पांव से लंगड़ी है, हाथ से लुंजी है और कान से बहरी है और आंख से जो है अंधी है, तुम्हें उस लड़की से शादी करनी होगी। बताओ शादी करोगे? अबू सालेह जंग दोस्त फरमाते हैं हाँ मैं शादी करूंगा, हाँ शादी करूंगा। हज़रत निकाह हो जाता है। निकाह हो जाने के बाद जैसे हुजरा में तशरीफ ले जाते हैं, ले जाने के बाद मामला पर अक्स नजर आता है। जैसे ही हुजरे में कदम डालते हैं, हुजरा और उसी में कदम जैसे डालते हैं, लड़की जबान से कहती और मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। लड़की कहती है अस्सलामु अलैकुम, सुभान अल्लाह। जंगी दोस्त कमरे में कैसे गए, फौरन वापस आए। वापस आने के बाद कहते हैं बोल नहीं सकती है, कान से बहरी है, जो है पांव से लंगड़ी है, हाथ से लुंजी है, उससे शादी करनी होगी। शादी तो हो गया है मगर आपकी लड़की बोल रही है, आपकी लड़की चल रही है, आपकी लड़की सबको देखती नजर आ रही है, आपकी लड़की आंख से देखती नजर आ रही है, आपकी लड़की जो है कान से सुनती नजर आ रही है। तो अब्दुल्ला सोमई ने कहा बिल्कुल मैंने सच कहा है, मैंने अपनी लड़की के बारे में इसलिए कहा कि मेरी लड़की लंगड़ी है कि मेरी लड़की खिलाफ कयास घर से बाहर कदम नहीं निकाला है। मेरी लड़की जो है कभी जो है गलत बात को अपने कानों से नहीं सुना है। मेरी लड़की जो है अपनी जबान पर किसी को गाली नहीं दी है। मेरी लड़की जो है गलत चीजों को अपनी आंख से नहीं देखी है। इस वजह से मैंने अपनी लड़की को लंगड़ी कहा, मैंने अपनी लड़की को जो है लूंजी कहा, मैंने अपनी लड़की को जो है जो अंधी कहा। इसलिए जो है मैंने जो कहा है अबू सालेह जंगी दोस्त, मैंने सच कहा है, झूठ नहीं कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दीजिए यही है गौसे पाक की वालिदा, सुभान अल्लाह, यही है गौसे पाक की वालिदा। मालूम क्या हुआ कि माँ जब उम्मे खैर फातिमा होती है तो बेटा गौसे आजम नजर आता है। माँ जब आबिदा साहिदा होती है तो बेटा गरीब नवाज नजर आता है। माँ जब फारिसा होती है तो बेटा 14वीं सदी का इमाम अहमद। इन्हीं की गौसे पाक की वाली गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब विलादत बासादत हुई, जब आप मदरसा निज़ामिया में पढ़ने कहाँ विलादत बासादत हुई, ईरान के कस्बा, एक कस्बा है जिसका नाम है जीलान। क्या नाम है? जीलान। उसे गीलान के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ आपकी पैदाइश मुबारक होती है, यानी बगदाद शरीफ की सरजमीन पर जब आपकी विलादत बासादत हो गई। हजरत गिरामी आइए मैं आपको गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुकद्दस सीरत के चंद झोंके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। हजरत गिरामी गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है, तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। किसने फरमाया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया। क्योंकि विलादत की जब विलादत जैसे गौसे आजम को ही तो खाम में अब्दुल्ला यानी अबू सालेह जंगी दोस्त के खाम में आका तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं ऐ जंगी दोस्त, तुम्हारे घर जो लड़का पैदा हुआ है वो मेरा लड़का
होगा, कुतुब होगा, अब्ताल होगा और उनका कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दनों पर। जब गौसे आजम बगदाद के मिंबर पर खड़ा होकर आपने जब कदमी हादी अला रकबते कुल्ली बली किल्ला फरमाया तो गरीब नवाज खोरासान के पहाड़ों में इबादत कर रहे थे, मुजाहिदात कर रहे थे, गौसे आजम की आवाज को सुन लिया। मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। बगदाद कहाँ है, खोरासान कहाँ है, और गरीब नवाज खोरासान के पहाड़ों में इबादत कर रहे थे और गौसे आजम की आवाज को सुन लिया ना, सुन लिया। और फरमाया या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपका कदम मेरे सर ही पर नहीं, मेरे कांधे पर ही नहीं, बल्कि आपका कदम मेरे सर पर भी है, मेरे आंखों पर। आईनी वारासी मेरे सर पर भी है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और मेरे आंखों पर भी। रिवायतों में आता है उस वक्त 300 अकाबीर बुजुर्गाने दिन उस वक्त मौजूद थे जो जहां थे। कोई दिल्ली में है तो दिल्ली में गौसे आजम की आवाज को सुन रहा है, कोई खोरासान में है तो खोरासान में गौसे आजम की आवाज को सुन रहा है, कोई अगर बॉम्बे में है तो बॉम्बे में गौसे आजम के फरमान को सुन रहा है। गर्ज के जो जहां है वहां गौसे आजम के फरमान को सुन रहा है। गौसे आजम फरमा रहे हैं मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर। सबने कहा ऐ नहीं बनासी, बल्कि मेरे कांधों पर ही नहीं बल्कि सर पर भी है और आंखों पर। सुभान अल्लाह। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे किबलाए ती मददे काबाए ईमान। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई मजमे से पजामा उठाकर सवाल कर सकता है। सवाल करने वाले कर सकते, कैसे सुने, कैसे सुने, कैसे सुने। हजरत आवाज कर रही है, कुछ बोल रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटी की आवाज को सुनकर काफिले को रोक लेते हैं। हजरत मुझे बताओ, मैं आपको दुनियावी एतबार से समझाऊं, बहुत मोटी बात में आपको ले जाऊं, बारीक बात समझ में भेजे में नहीं आती है। आज के इस दौर में, आज के इस इजाद के दौर में मोबाइल सबसे कीमती अहम चीज है। आपके पास मोबाइल है, आपने गाडरवारा से आपने बॉम्बे फूल लगाया, जैद बॉम्बे में है, बकर गाडरवारा में है, बात हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है बात हो रही है। बकर गाडरवारा में है और उसका दोस्त दिल्ली में है, फूल लगाया 99922345 लगाया, बात हो गई। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बात हो गई। बताओ मुझे इसमें कौन सी कनेक्शन है, कौन सा टावर है जो अभी आप गाडरवारा में थे, बात कर लिया बॉम्बे से, अभी गाडरवारा में थे, बात कर लिया आपने दिल्ली से। ये कौन सी टावर है, कौन सा नंबर है, कौन सा डिटेल है, मुझे कहने दिया जाए मुसलमानों। ये जो है बुजुर्गाने दिन का तसर्रुफ है। अल्लाह ने जो है बुजुर्गाने दिन को तसर्रुफ यानी इख्तियार दिया है कि वो अगर बगदाद में हो, अगर उसका मुरीद गाडरवारा से पुकारे तो गौसे आजम बगदाद से मदद कर सकते हैं, गरीब नवाज अजमेर से मदद कर सकते हैं, बसादिर कलियरी कलियर से मदद कर सकते हैं, मखदूम माहिर बम्बे से मदद कर सकते हैं, बख्तियार काकी दिल्ली से मदद कर सकते हैं। इश्क हो तो गरीब नवाज जैसा, इश्क हो तो ख्वाजा गरीब नवाज जैसा, मोहब्बत हो इमाम अहमद रजा जैसा। जब तो आला हज़रत फरमाते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग लगा बुझा देगी वो आग लगाई। रात है, देखो नौजवान लगता है कि बहुत गौर से सुना। यकीनन गौसे आजम का शहदाई नहीं, ये तो सब गौसे आजम की शहदाई है। कुछ लोग तकरीर सुन रहे हैं, कुछ लोग खा रहे हैं। मेरी तकरीर जो सुनते हैं वही सुनते हैं, जो खाते हैं वो सो जाते हैं, इसलिए गौर से सुनिएगा। इसलिए मौलाना साहब तकरीर के दरमियान कहते गए कि भाई इस्लाम बहुत पीछे चला गया है। कहाँ चला गया है? बहुत पीछे। इत्तेफाक से एक मजमे में से एक इस्लाम नाम के आदमी थे, पीछे घूम करके चाय पी रहे थे, तशरीफ लाए हैं, उनकी भी तकरीर आपको समाप्त करनी है। मैं आपका सिर्फ मिजाज बदलने के लिए खड़ा हो गया। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, मैं आपके लिए नया नहीं हूं। हज़रत गौसे आजम की हुकूमत इंसान तो इंसान जिन्नों पर भी है। बोल दीजिए, मैं साबित करूंगा, ऐसा नहीं फर्जी दिमाग तक है नहीं।
कि बोल से कोई और मौलवी जवाब नहीं दे। गौसे आजम की हुकूमत इंसान तो इंसान जिन्नातों पर भी। अब्दुल्ला बगदादी का बयान है कि एक मर्तबा वो बयान करते हैं, गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद गौसे आजम से अर्ज करते हैं, या सैयदी आकाई मौलाई, मेरी लड़की इत्तेफाक से सुबह की नमाज के बाद छत पर गई थी और छत पर से किसी जिन्नात ने उठाकर मेरी लड़की को ले गया। अब तक तुम्हारे सामने से जिन्नात का काफिला गुजरेगा, तुम डरना नहीं, तुम्हारे पास वो नहीं आएगा, तुमको कुछ नहीं कहेगा। जब सब काफिला गुजर जाएगा तो आखिरी में एक जिन्नात का काफिला गुजरेगा जिसमें सबसे बड़ा जिन्नातों का सरदार, सबसे बड़ा जिन्नातों का सरदार होगा। तुमको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ ये कहना है तुमको कि मुझे अब्दुल कादिर ने भेजा है। सिर्फ ये कहना है कि मुझको अब्दुल कादिर ने भेजा है। अब बस तुम्हारी जो फरियाद हो क्या देना। आखिरी वक्त जब रात का हिस्सा गुजरते गुजरते जब रात का आखिरी हिस्सा आया, सारी जमात जा चुकी थी, आखिरी जमात बाकी थी और उसमें एक जिन्नात का बादशाह जो था वो सबसे आखिरी में अपने काफिले को लेकर जा रहा था। जाने के बाद नौजवान की नजर पड़ी, उसने पूछा कैसे यहाँ खड़े, क्या बात है? कहा मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा। मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह, ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। क्या फरमाया कि मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा है। और बात यह है कि आज मेरी लड़की छत पर गई थी नमाज फजर पढ़ने के बाद और किसी जिन्नात ने मेरी लड़की को उठा कर ले गया है। मैं अपनी लड़की की तलब के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और गौसे आजम ने मुझको भेजा। हज़रात, जिन्नात का बादशाह आखिरी कमांडर ने सारे जिन्नातों को इकट्ठा किया, कल हाजिर हो जाओ, आज कोराम मचा दूंगा, आज जंगो जटाल कर दूंगा, आज जो बगदाद में कोराम मचा दूंगा। सुनो, कौन मेरे गौस की नगरी से लड़की को उठाया, कौन मेरे गौस के चमन से लड़की को उठाया। जन्नतों की जमातों में से अरे पद सुन लो, जो भी गौसे आजम की नगरी से लड़की को उठाया है वो लाकर अभी लड़की को सामने रखते, वरना मैं कत्ल कर दूंगा उस शख्स को। कौन है जो लड़की को उठाया है? इतना कहना था कि एक शख्स में, एक जमात में से एक जिन्नात बोलता है कि फला शख्स को मैंने देखा है जो चीन में रहता है, वो लड़की के साथ घूम रहा था, लड़की के साथ घूम रहा था। आपने उसको तलब किया, जिन्नात के बादशाह ने उसको तलब किया और तलब करने के बाद वो लड़की को लेकर हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद लड़की उस जवान के हवाले कर देते हैं और जवान हवाले करने के बाद आप फरमाते हैं कि यही वजह है कि मैं गौसे आजम की नगरी से दूर चला गया हूँ। गौसे आजम की नगरी से, गौसे आजम की जलाल से, गौसे आजम के कहर से मैं इसी वजह से दूर चला गया हूँ। वरना गौसे आजम जो है इंसान तो इंसान, बल्कि हम लोगों पर और बहुत ज्यादा सख्त नजर रखते हैं। सुभान अल्लाह। टुकड़ा था, मेरा लड़का एक ही था जो शादी करने के लिए गया था, दरिया से उस पार गया था और दरिया से उस पार जाने के बाद जब उधर से लड़की को लेकर के सारे बाराती लोग जब कश्ती के साथ वापस लौट रहे थे तो दरिया में सारे बाराती और कश्ती सारी डूब गई। इस बात को भी करें अगर फिर मैं इसकी तफसीर करूं तो आधा घंटा आपका गुजर जाएगा। अच्छी बात हो तो कहिए। दुनिया ने कहा बात यही है कि मेरा एक ही लड़का था, शादी करने के लिए गया था, वापस जैसे आया तो कश्ती के साथ सारे बाराती डूब गए, लड़का लड़की सब। मैं इस वजह से आया हूं कि मेरे लड़के को आप उस दरिया से निकाल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आदम फरमाते घबराओ नहीं, मैं इबादत कर रहा हूं। क्या फरमाते हैं? मैं इबादत कर रहा हूं, घबराओ नहीं, ठहर जाओ। पीरी का एक ही सहारा, एक ही बुढ़ापे की लाठी, एक ही लड़का था। वो लड़का जो है आज से 1200 साल पहले दरिया में डूब गया है, उसको कश्ती के साथ जिंदा कर दे, पानी को ऊपर लहरा दे। आपने दुआ फरमाई और कश्ती के साथ जितने बाराती थे, लड़का लड़की 12 साल डूबे हो गए थे। गौसे आजम ने दुआ की, उधर
की उतर कश्ती बरामद। नारे तकबीर। को न कोई खौफ है न कोई गम है, बेशक अल्लाह के वली हर खौफ से हर गम से मसलूल हुआ करते हैं। न कोई डर हुआ करता है न खौफ हुआ करता है, बल्कि दुनिया की हर शय उससे डरा करती है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नी मुसलमान पाइंदाबाद। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बजा हुआ है वो आगाज़ बात था। व आखिरी कलिमात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। एक खुश नगमा शायर इस्लाम को पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिन्हें मौसम बहार की तरह छा जाना आता है और घटा बनकर बादलों की तरह बरसना भी। मैं मद्दाह रसूल बाग़े तैयबा के फूल हजरत हाफिज मकसूद रजा साहब किबला कोटा को इस शेर के साथ, इस कथा के साथ मुस्तकीम रजा साहब को इस शेर के साथ आवाज देने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए आइए सबसे पहले नारे तकबीर व नारे रिसालत की सदा बुलंद कीजिए। नारे रिसालत, जनाब खाने रसूल आ जाओ, शायर बा वसूल आ जाओ। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। आप हजरात की खामोशी देखकर एक शेर मुझे याद आ रहा है कि प्यारे मुसलमानों, अपने अच्छे के लिए सोचिए खुदा के वास्ते और नेक कामों में हिस्सा लीजिए खुदा के वास्ते। और नाथ खान और शायरों को तो दाद देते हो बहुत दिल खोल कर, अरे कुछ अनाउंसर को भी दीजिए खुदा के वास्ते। आपसे नोट नहीं बल्कि सुभान अल्लाह का वोट मांग रहा हूँ। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह का दाद देते रहेंगे तो उलमा इकराम की हौसला अफजाई होगी और आपके नामे अमाल में सवाब का इजाफा भी। तो मैं इस शेर के साथ, इस कथा के साथ जनाब हाफिज मुस्तकीम रजा को आवाज देने के लिए जा रहा हूँ। नात खाने रसूल आ जाओ और शायर बा वसूल आ जाओ, अब लेके जुल्फे हबीब का खुशबू बाग़े तैयबा के फूल आ जाओ। रुतबा मेरे नबी का कुरान पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है। खुतबा मेरे नबी का कुरान पढ़ रहा है, खुतबा मेरे नबी का। और ये शेर उलमाओं के हवाले से नजर कर रहा हूँ। जो ये उमर में देखा चेहरा मेरे नबी का, था कत्ल का इरादा पल में हुए शैदा। जो ये उमर में देखा चेहरा मेरे नबी का, और क्यों आदम से रोज़े की जालियां का, क्यों ना अदब से झूमे रोज़े की जालियां का। तलवा मेरे नबी का, क्यों ना अदब से झूमे झूमे। क्यों ना अदब से झूमे रोज़े की जालियों का। जिब्रील ने भी चूमा तलवा मेरे नबी का। देखे जहान वाले रुतबा मेरे नबी का। और ये शेर भी देखें कि देता है रब ताला, देता है रब ताला, सरकार बांटते हैं। देता है रब ताला, देता है रब ताला, सरकार बांटते हैं। खाता है सारा आलम, खाता है सारा आलम, सदका मेरे नबी का खाता। और
جہلتا پریشان آقا کے معجزے سے کہ ابو جہل تھا پریشان ابو جہل تھا پریشان آقا کے معجزے سے کرنے پڑھ لیا جبھی کلمہ میرے نبی پڑھ لیا ابو جہل تھا پریشان آقا کے معجزے سے کنکر کہ ایمان والوں مرنے کے بعد قبر میں تم ایمان قبر میں تم ایمان والوں مرنے ایمان والوں مرنے کے بعد قبر میں تم دیکھو گے انشاءاللہ دیکھو گے کیسے ملے جہاں میں ان کی مثال ان کی مثال کوئی کیسے ملے جہاں میں کہ جب رب نے نام بنایا رب نے نام بنایا سایہ میرے نبی جب رب نے نام بنایا سایہ میرے نبی کا اور یہ شعر علماء کہ احمد رضا کو کیوں نہ ہم جان و دل سے مانے احمد رضا کو کیوں نہ ہم جان و دل سے مانے احمد رضا کو کیوں نہ احمد رضا کو کیوں نہ ہم جان و دل سے مانے جس نے دیا جمع کرے پہراؤ میرے نبی سبحان اللہ حق ہے جس نے جب اور درود پاک سنائے اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن شاروں نعت پاک کی سماعت فرمائیں کہ کہے آدم و عیسیٰ بولے حضرت نبی آیا نبی نبی ہوا لوری سنائے پورے جھولا جھولائے ہوا لوری سنائے پورے جھولا جھولائے ارے جھولے رب کا پیارا نبی نبی جھولے رب کا پیارا نبی نبی یہ شان رسالت تو دیکھو سلطان مدینہ نے پائی معراج کی شب میں آقا نے نبیوں کی امامت فرمائی پہنچے مسجد اقصی جس دم میرے آقا پہنچے مسجد اقصی جس دم میرے آقا ارے نبیوں نے پکارا نبی نبی نبیوں نے پکارا نبی نبی نبیوں نے پکارا نبی نبی واللیل زلف آقا کے چل کے کہتے سبحان اللہ لا سبحان اللہ کہ واللیل زلف آقا کی واشمد کیلوں سے پھیلی جگہ میں تابانی نہیں جسم کا سایہ نہیں دنیا میں آیا نہیں جسم کا سایہ نہیں دنیا میں آیا ارے کوئی شان تمہارا نبی نبی کوئی شان تمہارا نبی
दुखी दिलों का सहारा नबी नबी बेसहारों का सहारा छूट जाएगा। देखिए हजरत 23 से ऊपर 25 से नीचे कौन सा नंबर है, उसी नंबर वाले के लिए ये शेर सुना रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा कि बरोज हश्र जामो मीना छूट जाएगा, बरोज हश्र जामो मीना छूट जाएगा और सभी जन्नत में जाएंगे कमीना छूट जाएगा। और ए गर्दिशे दौरा यहाँ चल के तुम आना, रजा का नाम ले लूंगा पसीना छूट जाएगा। और तुम्हारा बेवफा कहना हमें मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ रहने से मदीना छूट जाएगा। हजरत यह थे शायर इस्लाम मता है खैरुल अनाम माहिर सुखने बलागत नदाम हजरत हाफिज मुस्तकीम रजा साहब किबला, जो बेहतरीन लबो लहजे में नाते नबी नाते रसूल गुनगुना रहे थे। तो तबीयत तो यही चाह रही थी कि ऐ वक्त ठहर जा कि जरा और भी सुन ले, ऐ वक्त ठहर जा कि जरा और भी सुन ले, लम्हे ये बार बार में असर नहीं होते। हजरत कुछ ही देर के बाद पीरे तरीकत मुनाजिर अहले सुन्नत आता है कुफ्र व जलालत माहिए बिदत खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब किबला हुजूर शेरे बिहार जीनत स्टेज होने वाले हैं। हजरत की जियारत से आपको मुशर्रफ होना है और हजरत की जियारत से आपको मुशर्रफ होना है और उलमाए किराम व शूरा एजाम की खिताब नायाब भी आप हजरत को समाअत करनी है। तो आप आइए। या रसूल अल्लाह, अगर मदीने में पैदा हुआ होता तो क्या होता, जरा लहक कर बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत सुन्नी जन्नती मुसलमान रसूल पाक का नाम आए और खामोश रहे, ऐसा नहीं हो सकता। जरा अपने प्यारे नबी के नाम पे तरफ कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, जरा और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कि या रसूल अल्लाह, अगर मदीने में पैदा हुआ होता तो क्या होता। भाई मदीने में पैदा होना नहीं चाहते हैं, अरे जरा जोर से बोलिए। हुआ होता तो क्या होता और मजनू क्या होता तो क्या होता। तो हजरत अब आइए आपके जायका को बदलने के लिए, आपके ज़हन मूड को बदलने के लिए तलीकुल लिसान फसीहुल बयान वाकिफो तफसीरो कुरान से क्या ही नेपाल व हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब किबला मदजिल्लाहु नूरानी गुना MP से तशरीफ लाए हैं। उनको मैं इस शेर के साथ, इस कथा के साथ और नारे तकबीर के साथ आवाज देने के लिए जा रहा हूँ। आइए सबसे पहले हजरत के हौसला अफजाई के लिए नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदा बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत और सुन्नी आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस में नूरे ज़या में चले आइए। भाई बोलिए लहकर सुभान अल्लाह। कि बस में नूरे ज़या में चले आइए और अपने आका के बारे में फरमाइए। और पर्दा नशीनाने ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर सहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। वफा मेरे मौला मुफ्ती आज़म बेरया के वास्ते। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली नस्तफ़ा व अला आलिही व अस्हाबिही अल्लज़ीना सअदू फ़ी मलाइका अला हुदन मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून।
وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن کی سعادت حاصل کیجیے اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. بڑے ہی قابل مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات کہ پیر پیران دستگیر بے کساں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک مہینے میں جلسہ غوث الورا کا انعقاد کیا. علماء کرام کو مدعو کیا. آپ جلسہ سننے کے لیے آئے. رات کے ابتدائی حصے سے لے کر اب تک بڑے ہی محبت کے ساتھ علماء نام سن رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں آپ کو سب کو سرکار غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے. اور یہ دارالعلوم نوریہ رب قدیر دارالعلوم غوثیہ کو دارالعلوم نوریہ کو دین دونا رات چگونی ترقی عطا فرمائے. پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد. پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد. عالم کے دستگیر ہیں یا غوث المدد. اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کیا کبھی جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. کیا کبھی جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. پورا کا پورا اسٹیج معزز علماء کرام سے بھرا ہوا ہے. دائیں بائیں اسٹیج کا ہر حصہ ہمارے محب گرامی علی جناب حافظ و قاری جو دارالعلوم نوریہ کے روح رواں ہیں جناب حسنین رضا صاحب نے علماء کرام سے بھر دیا ہے. ہماری دعا ہے رب قدیر جناب حافظ و قاری کی ترقی عطا فرمائے. یہ ہمارے علماء کرام حضرت علامہ مولانا معین اشرف صاحب خلیفہ حضور شیر بہار حضرت علامہ مولانا قاری سعید رضا صاحب پیر طریقت علی جناب حافظ و قاری اشتیاق صاحب اور ہمارے دیگر علماء